اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ میرے معزز پاکستانی بھائیوں، حاجی طاہر نوید کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی نشست کا موضوع عوام الناس میں پائے جانے والی بے چینی، عدم تحفظ کا احساس، لاقانونیت، ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن ہے۔ آج میں جب آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کل کراچی اورنگی ٹاؤن الطاف نگر میں دو ڈاکو ڈکیتی کے لیے آئے۔ ڈکیتی میں ناکامی کے بعد وہ بھاگ لیے، مگر ان میں سے ایک آدمی، ایک ڈاکو عوام الناس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پہلے تو عوام نے اس پر خوب تشدد کیا، پھر اس کے بعد پیٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا دی۔ جب میں نے سوشل میڈیا پر وہ تصویر دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ، پاکستان ان مقاصد کے لیے تو معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ تو میں یہ کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا کہ آج کے ذمہ داران آج ایک پلیٹ فارم پر سب اکٹھے ہیں، اور وہ ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت۔ یہ سارے حکمران جو آج ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں، مختلف الذہن اور مختلف نظاموں کے دائی تھے۔ کبھی کوئی سوشلزم اور اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگاتا تھا، کبھی کوئی اسلام کا اور اسلامی جمہوری نظام کا نعرہ لگاتا تھا، اور یہ گزشتہ 40 سال سے آپس میں دست و گریباں تھے مبینہ طور پر۔ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ آپس میں باریاں لے رہے ہیں، اندر سے ایک ہے، مگر یہ ہمیشہ عوام الناس کو بے وقوف بناتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رہے۔ آج یہ امپورٹڈ حکومت کی شکل میں سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور آج سارے مل کر حکومت کر رہے ہیں۔ آج کی لاقانونیت، مہنگائی، بے روزگاری، افراتفری، پاکستان کے بیرونی قرضے، ہر معاملے میں یہ حکمران ذمہ داران ہیں، اور آج اس نہج پر پاکستان ان کی وجہ سے آیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ 30-35 سال میں مبینہ طور پر قانون و انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا تھا۔ معذرت کے ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوریاں نہ کر سکے، اور عوام الناس کو انصاف بھی مہیا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے کل کا یہ اندوناک واقعہ پیش آیا۔ کہنے کو تو یہ ایک ڈاکو کو آگ لگائی گئی، مگر یہ انصاف، قانون اور حکمرانوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ عوام کو انصاف نہیں مل رہا، ان کو بنیادی ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی۔ عوام ڈپریشن کا شکار ہے، عوام اپنے آپ کو عدم استحکام کا شکار سمجھتے ہیں، عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں۔ ملک میں کیا چیز میسر ہے؟ حکمرانوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟
लाकानूनियत, महंगाई, बेरोजगारी। गुज़श्ता इमरान खान साहब की हुकूमत में मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न था। जो अब इस हुकूमत में रिपोर्ट आई है कि पीटीआई हुकूमत ने 6,000 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ दिया गया था वो पूरा उसको अबूर कर लिया। पिछले दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई। जितनी 2 माह में इस हुकूमत में महंगाई हुई है वो अशरे अशीर भी नहीं इमरान खान की हुकूमत में जो महंगाई हुई। मगर महंगाई के अलावा एक और बहरान ने सर चढ़ के बोल रहा है, वो है बिजली का बहरान। आज पूरा मुल्क बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है और मिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वजीर आज़म इम्पोर्टेड हुकूमत के, कि जुलाई के महीने में ये बहरान बढ़ सकता है, मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं इस रिपोर्टेड हुकूमत से कि क्या इमरान खान साहब जाते हुए बिजली साथ ले गए थे? क्या इमरान खान साहब के 3.5 साल में गर्मियां भी आई और सर्दियां भी आई, बिजली का बहरान था कोई, लोड शेडिंग थी कोई? नहीं। मौजूदा हुकूमत में लोड शेडिंग इस हद तक पहुंच चुकी है कि ये हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत महसूस हो रही है कि कल मारीपुर में बिजली की शदीद बंदिश की वजह से मारीपुर में अवामुन्नास बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। वहाँ पर मारीपुर कराची में पुलिस ने ना सिर्फ उन पर अंधाधुंध इस्तेमाल की बल्कि फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो गए। इस हुकूमत का ये प्लान है जिस पर ये अमल पैरा है कि कोई भी जो हक के लिए निकले इसको कुचल दो। अगर इमरान खान हक के लिए निकलता है, अवामुन्नास निकलती है, जो बुनियादी हक है उनका, तो इनका एक ही यानी कि लाइन ऑफ एक्शन है कि कुचल दो, जो भी हक के लिए निकल कुचल दो। पहले पारा की शायद 42वीं आयत है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिले व तक्तुमुल हक्का अंतुम तालमून, और ना मिलाओ हक को बातिल से और ना छुपाओ हक को जबकि तुम जानते हो। हक तो ये है कि अगर अवाम आपसे बिजली मांग रही है तो उसको बिजली दो। बिजली चली कहां गई? मैं ये समझता हूं कि शाहद खान प्राची का जो बयान था कि हम अगर 1 घंटा बिजली बंद करते हैं तो इतने अरब रुपए की बचत है, ये हुकूमत बचत पे लगी हुई है कि जो बचता है समेट लो, दोबारा बारी मिले या ना मिले, जो इकट्ठा होता है इकट्ठा कर लो। ये इंपोर्टेड हुकूमत, इसके तमाम वुज़रा, मरियम बीबी, मरियम औरंगजेब, मुफ्ता और वो अरस्तु साहिवाल वाला, सियालकोट वाला, और ख्वाजा आसफ, सब एक ही बात, एक ही रो रहे थे कि पिछली हुकूमत IMF से मुआहदा कर गई, पिछली हुकूमत IMF से मुआहदा कर गई, तब महंगाई हो रही है। परसों शहबाज शरीफ ने बयान दिया है बाकायदा कि हमारा इस महंगाई का IMF के मुआहदे से कोई तल्लुक नहीं। यानी झूठ मुसलसल बोलते हैं, फिर देखते हैं कि ये झूठ पकड़ा गया है तो फिर खुद ही उसकी नफी करते हैं और नए झूठ की तैयारी करते हैं। बिजली के बहरान के मुतल्लिक़ कल कराची में एक और वाक़या हुआ है। कराची सदर में कल ताजरों ने एहतजाज किया है और इस एहतजाज में उन्होंने बिजली के बिल जलाए हैं और सिविल नाफरमानी तक का वहाँ पर नारे लगे हैं कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे।
क्यों ऐसा हुआ? 6-7 रुपए पर यूनिट बिजली बढ़ाई गई या फिर बढ़ाने का प्रोग्राम है कि बिजली के बिल दोबारा बढ़ाए जाए। गैस में इजाफा हो रहा है और 10 रुपए किलो वो गैस में इजाफा हो गया 10 रुपए का, और 210 रुपए तक सिलेंडर में इजाफा हो गया पर सिलेंडर घरेलू गैस के इस्तेमाल। तो मुल्क तो अनारकी की तरफ जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला की आयत का तर्जुमा दोबारा करो, और ना मिलाओ हक को बातल के साथ और ना छुपाओ हक को जबकि तुम हक जानते हो। हक ये है कि हमें अमेरिका, इसराइल और भारत की परवरदा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना है और निकलना है। इमरान खान साहब ने हफ्ता 2 जुलाई को जलसे का ऐलान किया परेड ग्राउंड में। तमाम पाकिस्तानियों का ये हक है कि वो इसके लिए निकले, अपना हक लेने के लिए निकले। हमें पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, क्या मसलन लाहौर में अगर 1000 डाका पड़ा है पिछले साल, तो क्या 1000 डाकू गिरफ्तार हुए? और जो गिरफ्तार हुए क्या उनको सजाएं हुई? इंसाफ का निज़ाम जो है ही नहीं सही। सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया कि चोर, डाकू, बेईमान जो है वो कानून की गिरफ्त से बाहर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हुक्मरानी चोर और डाकू हो, मैं नहीं कहता, ये शहबाज शरीफ कहता था कि पाकिस्तान की दौलत लूटने वाला सबसे बड़ा चोर जो है वो जरदारी है, मैं इसका पेट फाड़ूंगा, मुल्की खजाना लूटा हुआ लेकर आऊंगा। वो डाकू आज हुक्मरान है। जरदारी कहता था कि ये जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ है, मुल्की दौलत लूटने वाले हैं, चोर हैं, डाकू हैं, वो डाकू आज वजीर आज़म है। और मैं ये कहता हूं कि तमाम डाकू और चोर इस वक्त हुक्मरान है। तो जब ये चोर और डाकू हुक्मरान होंगे तो इंसाफ का बोलबाला तो होगा ना। हमें पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, मुसावी हकूक के लिए जितनी आज ज़रूरत है जद्दोजहद की, इससे पहले नहीं थी। कायदे आज़म ने अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद किया था। आज हमें अमेरिका से, इसराइल से, भारत से और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। उसके लिए मैं फिर भी कहता हूँ कि अवामुन नास का फ़र्ज़ है, अव्वलीन फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए निकले। हफ्ता 2 जुलाई को जलसा जो हो रहा है परेड ग्राउंड में, उसमें भरपूर शिरकत करें और हर उस कुव्वत का साथ दें जो पाकिस्तान की सालमियत और सरबुलंदी के लिए कोशां है, और हर उस चोर, डाकू और लुटेरे के खिलाफ उठ खड़े हो कि हमें इनसे निजात चाहिए। वो कराची में एक इनफरादी तौर पर डकैती करने वाला डाकू हो या इज्तमाही तौर पर मुल्क को लूटने वाले ये हुक्मरान, हमें सबसे हिसाब लेना है और कानून के मुताबिक लेना है। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब ये चोर, डाकू, लुटेरे अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। अगर हमने इनको कानून के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए सज़ा ना दी, तो जिस तरह इनफरादी तौर पर एक डाकू को अवाम के जम्मे गफ़ीर ने जलाया है, कहीं हुक्मरानों का भी यही हाल ना हो कि अवामुन्नास इनको ऐवान इक़्तिदार से निकाले और सड़कों पर इनको फिर घसीटे। जब अवाम चोरों डाकुओं को घसीटने के लिए निकलेगी तो इनको कोई NRO नहीं मिलेगा और ना मिलना चाहिए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात अता फरमाए। मेरे कोलो फिल में जो तजाद है अल्लाह ताला वो दूर फरमाए।
पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सरबुलंद करे और जिन मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था उनकी तकमील हो। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के लिए अमली तौर पर हम सब को जद्दोजहद करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर व मा अलैना इल्ला